dear students, today we are going to learn the subject that is your science and technology. This is your paper 2 of standard 10. This is your new chapter, your animal classification chapter number 6 complete हो चुका है और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं that is your chapter number 7 which is your introduction to microbiology. हम ये लेसन में microbiology इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे that is the minute microorganism which we are going to study in this chapter. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पढ़ने वाले हैं दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज योर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. क्या है ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में स्टडी करेंगे. सेकंड हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, इसके कुछ मेन फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं. उसके बाद प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज योर डेयरी प्रोडक्ट. जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क होता है, चीज होती है, ये तमाम जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी आइटम्स जो है डेयरी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं. उसके बाद बी दैट इज योर योगर्ट प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे. उसके बाद हम बटर के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चीज प्रोडक्शन. Yes, my dear student, we had already completed the chapter number 6 that was animal classification. Today we are going to start the new chapter that is introduction to microbiology. Yes, my dear students, microbiology का मतलब क्या है. Microbiology is nothing but it is the study of microorganisms, those being unicellular भी हो सकते हैं या तो वो multicellular भी हो सकते हैं और acellular भी हो सकते हैं. Uni means single cell organism, multi means more than one cell. So in this chapter we are going to study about microbiology, that is we are going to study about microorganism. किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Microorganisms के बारे में पढ़ने वाले हैं. Next, coming to ahead, we are going to learn the important points that is applied microbiology के बारे में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद the second we are going to learn about industrial microbiology and the last we will go in this chapter we will learn about the products. What is actually the products? इन तीन मेन बातों के बारे में हम ये लेसन में पढ़ने वाले हैं. Coming towards the first that is your applied microbiology. Applied microbiology है क्या. To some prokaryotics and eukaryotics microbes, proteins, applied genetics, molecular biology etc. is performed is called as applied microbiology. अब मैं आपको कहूँगी ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में. एंजाइम्स के बारे में. एंड व्हाट आर एक्चुअली एंजाइम. एंजाइम क्या है. एंजाइम इज नथिंग बट इट इज़ अ बायोकैटलिस्ट विच स्पीड अप द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. It is related to some prokaryotics. Prokaryotics क्या है अब. Prokaryotics is a cellular organism that lack an envelope enclosed nucleus. Pro का मतलब होता है, you can see here pro मतलब before, karyons means nut and eukaryotic microorganisms के बारे में पढ़ेंगे. Now what are eukaryotic microbes? They are nothing but they are an organisms whose cell have a nucleus enclosed within a nuclear envelope. आपको मैं कहूँगी यू मतलब वेल जिसको हम बोलते हैं वेल और गुड जिसको हम कहते हैं और कैरियॉन्स अगेंस्ट. बट प्रोटीन्स, व्हाट आर एक्चुअली प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर नथिंग बट दे आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी. दे आर वेरी वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स and the last year it is written as applied genetics. Now what do you mean by applied genetics. Applied genetics is nothing but it is directed at changing the genomes of organisms to increase their utility to humans. उसके बाद यहाँ पर आ रहा है molecular biology. What do you mean by molecular biology. So molecular biology is the field of biology that studied the composition, structure and interaction of cellular molecules. My dear students, ये applied microbiology के अंदर हम society and various products like food and medicines के लिए are produced on a large scale, on an abundant scale, on a huge scale with the help of what? With the help of this microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं और ये पूरे चैप्टर में हम ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न the next topic that is the industrial microbiology. Now what do you mean by industrial microbiology. ये industrial microbiology में हम क्या पढ़ने वाले हैं.
it is the science, yeah, this science is related to commercial use of microbes. So we are using this microorganism on a commercial basis, in which various economic, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूड, जिसमें एनवायरमेंट से, माहौल से रिलेटेड रहने वाली सारे प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड होती है। ऐसे को हम जो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, बिकॉज दे आर यूज ऑन अ कमर्शियल बेसिस। वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेस यूजफुल फॉर दिस पर्पज आर कैरीड आउट, जिसमें हम इसका मेन फीचर जो है पहला जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर ए, दैट मीन्स वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इडली बनाते हैं, डोसाज बनाते हैं, इसमें फर्मेंटेशन मतलब जो खमीर जो आता है, रात भर हम जब ये बैटर को रखते हैं तो दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस ओवरनाइट एंड दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो ये जो खमीर होता है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस। मैं अगले टर्म में ये बताऊँगी आपको कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स through the action of enzymes. So मैं हमेशा कहती हूँ enzyme are nothing but it is a biological catalyst which speed up the rate of a specific chemical reaction. Raw material for chemicals, enzymes, nutrients, medicines, etc. नेक्स्ट बी पॉइंट हम देखेंगे कि इसमें ये लिखा है यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। सो वी आर यूजिंग दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट। हम देखते हैं हर घर से या हर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो ऑफिस हो, तमाम जो जितनी भी जगह से जो है जितना भी गार्बेज निकलता है दैट आर कलेक्टेड एंड दे आर डिकम्पोज एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये गार्बेज को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सूखा कचरे को अलग कर दिया जा रहा है, गीले कचरे को अलग कर दिया जा रहा है, बिकॉज जो कचरा रीयूज होता है विच आर अगेन एंड अगेन रिसाइकल्ड। तो ऐसी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करती है रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी जो है अच्छा होता है। लेकिन जो चीज़ें जैसे प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक मटेरियल जो रिसाइकल नहीं होती, ये प्रॉब्लमैटिक करती है डिकम्पोज करने के लिए ज़मीन में, सॉइल में, या डिग्रेड होने के लिए सॉइल में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो व्हाट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द रिसाइकलिंग प्रोसेस, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस गार्बेज एंड गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल कैसा होता है, पोल्यूशन ये दुनिया का कचरा जब जलता है तो पोल्यूशन इज़ बीन टेकिंग प्लेस। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ज़्यादा जब कचरा जलता है तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कचरे को खाते हैं, दे डिकम्पोज, दे डिग्रेड इन द सॉइल। सो पोल्यूशन को हम इस ज़रिए से जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट मेन पॉइंट, वी यूज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस वाइल कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू योगर्ट। तो किस तरह जो है मिल्क जो है और मेन सॉलिड जो है वो नीचे आता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा कर्ड डालें और इसको जमाने लगे तो दिस मिल्क हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू योगर्ट, दैट इज़ योर दही। So this dahi is that means this yogurt is very useful for your digestive process। जब हम ये कर्ड को खाते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आज योगर्ट जो है बहुत ही वैरायटी ऑफ फ्लेवर में भी आता है, जैसे स्ट्रॉबेरी योगर्ट आपने मॉल्स वगैरह में देखे होंगे, ऑरेंज योगर्ट, ब्लूबेरी योगर्ट। सो वेरियस टाइप ऑफ इसमें जो है फ्लेवर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से आपका काफ़ी बच्चे भी इसको खाना पसंद करते हैं। विच माइक्रोब्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। इसमें ये कहा जाता है कि जब मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू योगर्ट, मतलब मिल्क दूध को दही में जब बदलता है, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हेल्प करते हैं ये प्रोसेस के लिए। तो ये प्रोसेस जो है हम आगे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट वन हम देखेंगे, पहला है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इज़ योर डेयरी प्रोडक्ट। जितने भी दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं हम आपको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम यू कैन सी डाउन माय डियर स्टूडेंट। दिस इज योर चीज़, यू कैन सी मिल्क है, आपको एग्स दिख रहा है, डो दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर कर्ड दिख रहा है, यू कैन सी दिस कर्ड ऑल्सो डाउन हियर। सो दिस ऑल आर द डेयरी प्रोडक्ट्स विच यू कैन सी इन योर डे टू डे लाइफ, एवरी डे यू आर सीइंग दिस। नाउ सिंस एशियन डेज, पुराने ज़माने से मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू
वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन पर्पसेस। हम ये दूध को डायरेक्टली कंज्यूम डेली नहीं कर सकते, इससे हम मिठाइयाँ बना सकते हैं, इससे हम जो है योगर्ट बना सकते हैं, यू कैन मेक चीज़, यू कैन मेक बटर, वैरायटी ऑफ थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस मिल्क माय डियर स्टूडेंट्स। सो इस तरह जो है हम ये दूध को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम दूध को नॉर्मली बार बार इतना दूध ये दूध को जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखा है चीज़, बटर, क्रीम, केफिर, योगर्ट एक्सेट्रा। यहाँ एक अल्फाज आया है केफिर। व्हाट आर केफिर? केफिर क्या है? आपने पहली बार इसके अल्फाज सुना होगा कि केफिर क्या है। केफिर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फर्मेंटेड मिल्क है, ट्रेडिशनली मेड यूजिंग काउ मिल्क या गोट मिल्क। जो आप भैंस का दूध पीते हैं या तो गोट का दूध पीते हैं, उससे ही ये बनता है। इट इज़ मेड बाय एडिंग केफिर ग्रेन्स टू द मिल्क, और इस तरह ये जो है केफिर तैयार होता है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी आगे हम देखते हैं वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर इज इम्प्रूव। जब दूध को हम एसिडिटी ऑफ मिल्क चेंजेस, सो इसकी मिल्क की एसिडिटी चेंज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बहुत सारे प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम चीज़ बनाते हैं तो उसका टेक्सचर बदलता है, द फील कैसा आप देखते हैं, अमूल का चीज़, ब्रिटानिया का चीज़, बहुत सारे टाइप ऑफ गो का चीज़ है, न्यूट्रलाइट का, डिलीशियस चीज़, मैनी ऑफ द टाइप्स, बहुत सारे चीज़ आज मार्केट में आ गए हैं। तो आप बहुत सारे जो है चीज़ जब आप खाते हैं, अमूल खा रहे हैं, ब्रिटानिया में, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का फील अलग है, दोनों का फ्लेवर अलग है, दोनों का जो है सॉफ्टनेस अलग है। सो वी कैन सी दिस डिफरेंस बिटवीन द सेम, एक ही चीज़ है बट डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स, टू कंपनीज, किस तरह ये मैन्युफैक्चर कर रही है, किस तरह इसका फ्लेवर है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं द टेस्ट, कैसा उसका टेस्ट है, कैसा उसका फ्लेवर इम्प्रूव करा गया। आज की टाइम में जो है अमूल इज़ वन ऑफ द ब्रांडेड जो है नंबर 1 पे चलते हैं कि अमूल के प्रोडक्ट्स है, दैट मीन्स दे आर द वेरी गुड प्रोडक्ट्स, हम मान के चलते हैं। सो इन दिस वे जो है ये प्रोडक्ट्स को जो कन्वर्ट करा जाता है, एंड ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन यू कैन सी द प्रोडक्ट्स एंड द टेक्स्ट। दिस इज योर योगर्ट प्रोडक्ट्स। अब योगर्ट प्रोडक्ट्स क्या है? योगर्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ब्यूटीफुल डायग्राम दिख रहा है दही का आपको। तो अगले जब इससे पहले वाला आपको स्टडी कराई थी, जब मैंने आपको बताई थी कि इसमें कौन से बैक्टीरिया जो है चेंज होते हैं फ्रॉम मिल्क टू योगर्ट, तो कौन सा बैक्टीरियाज होता है जो ये दूध को दही में बदलने के लिए हेल्प करता है। तो अब ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। योगर्ट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलियाई। लैक्टोबैसिलियाई जो हेल्प करता है मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट होने के लिए। फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्स विद द मिल्क टू बी फर्मेंटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ले ले तो दिस मिल्क पाउडर कंडेंस्ड मिल्क में कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्स विद द मिल्क के साथ टू बी फर्मेंटेड, फर्मेंट करने के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। जैसे मैंने आपको बताई बहुत सारे फ्लेवर के योगर्ट होते हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ऑरेंज है, फॉर इंक्रीज द टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो दिस योगर्ट के अंदर जो बैक्टीरिया जो होता है दैट इज द लैक्टोबैसिलिया। सो ये लैक्टोबैसिलिया हेल्प करता है, दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध को दही में बदलने के लिए। दिस इज द इनोक्यूलेंट माय डियर स्टूडेंट। इनोक्यूलेंट मतलब हम इसकी जो है कॉलोनीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो बच्चे आगे चल के माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह स्टेनिंग करी जाती है, किस तरह जो है बैक्टीरियाज को इनोक्यूलेट करके तकरीबन 24 आवर्स या 16 आवर्स, उसके बाद जो है 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए रखा जाता है ये, और उसके बाद इनकी कॉलोनीज जो है प्रोड्यूस होती है या फॉर्म होती है। तो ये सब जो है आगे का प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज योर हायर, दिस इज अबाउट योर हायर स्टडीज व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट, यू विल टेक दिस सब्जेक्ट ऑफ द एंड वंस इट इज़ कूल टू वार्म टेम्परेचर, और उसको जो है ठंडा किया जा रहा है एक वार्म टेम्परेचर पे।
बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ, ये दोनों अल्फाज जो है दिस आर द टर्म्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी माय डियर स्टूडेंट, दैट इज योर स्टेफिलोकोकस, थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलियस डर्बेक्यूई आर एडेड टू 1:1 प्रोपोर्शन के अंदर. लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू स्टेफिलोकोकस दैट मेड द प्रोटीन टू जेल. अब ये जो है चीज़ किस में बदल गई है, जेल में आउट, दैट गिव डेंसिटी कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट. अब ये क्या करता है, थिकनेस देता है. किसको दे रहा है, व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू योगर्ट इट गिव द कंसिस्टेंसी. ये थिकनेस दे रहा है, किसको दे रहा है, योगर्ट को दे रहा है. नाउ यहाँ पर दिया है एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स आर फॉर्म. नाउ व्हाट आर एसिटाल्डिहाइड्स. एसिटाल्डिहाइड इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विद द फॉर्मूला. आप देखते हैं हमेशा आपने पेपर 1 में भी पढ़े होंगे या पढ़े हैं अबाउट CH3. CH3 is acetaldehyde my dear students. So acetaldehyde like compounds are formed due to कब, due to lactobacilli. This is the microorganism that give characteristic taste देता है, किसको, योगर्ट को देता है, ये दही को देता है. Nowadays various fruit juices are mixed with yogurt. योगर्ट के लिए जो है या वेरियस जो है फ्रूट्स जूसेस आर मिक्स विद द योगर्ट ऑल्सो टू इम्पैक्ट डिफरेंट फ्लेवर्स. जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताई थी पहले भी, स्ट्रॉबेरी योगर्ट होता है, बनाना योगर्ट होता है एक्सेट्रा. मैंने आपको ब्लूबेरी के योगर्ट के बारे में बताई थी, ऑरेंज योगर्ट के बारे में भी बताई थी. सो दिस ऑल योगर्ट जो है आपको मॉल्स वगैरह में या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान होती है, शॉप्स होती हैं, वहाँ पर आपको ये फ्लेवर के जो है योगर्ट मिलते हैं और आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं. दिस आर वेरी ब्यूटीफुल टेस्टी प्रोडक्ट्स, यू कैन ईट ऑल्सो. और ये खाने के लिए ही बनाए के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है. और यहाँ ही इतना ही नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट एंड इट्स प्रोबायोटिक्स प्रॉपर्टी कैन बी इम्प्रूव बाय पेस्चराइजेशन. सो probiotics, what are actually probiotics? Probiotics are called as a good or helpful bacteria because they help keep our gut healthy. ये हमारे पेट को बहुत ही healthy, strong रखता है. Pasteurization आप दिख रहा है एक अल्फाज. So what do you mean by pasteurization? Pasteurization is a process in which packaged and non-packed food, packed or non-packed food are treated with the mild heat to less than 100 degrees Celsius. So जो है this can be improved by the pasteurization process. Now coming ahead, next we are going to see about butter. Butter सबको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे भी बटर बहुत पसंद है, उसी तरह आपको भी बटर बहुत ही पसंद होगा. 2 types of butter है, like sweet cream and cultured प्रोड्यूस माय डियर स्टूडेंट. स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड आप प्रोड्यूस. जैसे बटर आप मस्का जो है या तो ब्रेड में लगाते हैं, पाव में लगाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ हम ऐसा भी खाते हैं और सभी बच्चों को भी जो है बटर बहुत ही पसंद है. सो दिस 2 टाइप ऑफ बटर लाइक स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड आर प्रोड्यूस ऑन ए वेरी लार्ज स्केल. नाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वराइटीज. तो ये सारे जो है प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर ऑल्सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प for the production purpose. Coming toward the next, that is your cheese product. आज जो है बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं चीज़ को खाने के लिए, बटर को खाने के लिए. ये स्लाइस जो आपको दिख रहे हैं, this is nothing but it is the slice of the, आप मान के चले ये this is the cheese and this is the butter. तो स्लाइस जो है चीज़ खाने हमें. So cheese production, cheese is produced on a large scale for abundant availability from the cow milk and all over the world. हम देखते हैं पूरी दुनिया में जो है चीज़ का प्रोडक्शन होता है और and it is produced on a very large scale. और ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द काउ के मिल्क से. फर्स्ट केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क का परफॉर्म. जो भी केमिकल्स जो है चीज़ बनने जाता है उसके लिए सबसे पहले जो है केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क का करा जाता है कि किस तरह कैसी क्वालिटी है मिल्क की. जब हम कुछ चीज़ को बना रहे हैं तो जब हम उसको बना रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी भी होनी चाहिए, तो पहले उसको जो है केमिकली दे आर बीन टेस्टेड. सम कलर्ड एंड माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलियस लैक्टिस, Lactobacillus thermoris and Staphylococcus thermophilus are mixed with the milk. तो ये 3 बैक्टीरिया को दूध के साथ मिलाया जाता है. Some colors are also added to it. It impact the sourness to the milk, जिसकी वजह से मिल्क को जो है थोड़ा फ्लेवर आता है, थोड़ा नमकीलापन होता है, खटासपन आती है. After this
to impact the dense texture. Texture means what, my dear sir? Pigments means color, and texture matlab the feel. When water in the yogurt needs to be removed, जब पानी निकाला जाता है दही में से, हम कहते हैं दही में से जब पानी निकाला जाता है तब. An enzyme, that means an enzyme is a biocatalyst which speed up the rate of a chemical reaction. Rennet obtained from alimentary canal of the kettle was being traditionally used earlier. पहले ज़माने में बहुत सारे जो है टेक्निक का इस्तेमाल करा जाता है, but due to this introduction of this microbiology, जब से माइक्रोबायोलॉजी का जो है जब प्रोसेस आया है और ये जो है न्यू टेक्नोलॉजी में जब आया है, इसका जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे जो other of the dairy products. However, an enzyme protease obtained from fungi से मिलती है, यूज एट प्रेजेंट टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़. बहुत अभी हमने नॉर्मल चीज़ देखे हैं, आज जो है वेजिटेरियन चीज़ भी आते हैं, वेजिटेरियन मायनीज भी आते हैं. सो दिस आर द टेक्निक्स हाउ दे आर मेड. का दूध से ही बनाया जाता है, पर किस तरह जो है इसको अलग अलग चीज़ ही है, पर वेजिटेरियन भी चीज़ होता है, नॉन वेज चीज़. दैट इज़ योर चीज़ विच इज़ मेड फ्रॉम वॉट, which is made from the cow's milk, my dear student. So when there is a separation from yogurt, तो दूध को जब निकाला जाता है, ये दोनों भी जो है चाहे वो वेजिटेरियन, all the cheese are made from what, they are made from the milk. So when they whey is separated from the yogurt, that means which has some other uses, then process of production of cheese is started through step like cutting the solid yogurt. पहले जो है योगर्ट बना है उसको कट करते हैं into pieces, फिर उसको वॉश करते हैं, फिर उसको रब करते हैं, फिर सॉल्टनिंग नमक का इस्तेमाल करा जाता है, एंड मिक्स विद द एसेंशियल माइक्रोब्स, जिसके वजह से उसको कलर दिया जाता है, एंड इट गिव्स फ्लेवर टू दैट प्रोडक्ट. देन चीज इज pressed, they are compressed, they are pressed and cut into pieces and stored for ripening. That means become or make ripe. मैं आपको कहूँगी तो इस तरह इसका प्रोसेस जो है किया जाता है. सो आज हमने जो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े हैं. उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ रहे थे उसके मेन फीचर्स देखे हैं. उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स पढ़े हैं. प्रोडक्ट्स के अंदर हमने 4 बातें देखी. दैट इज़ A1 दैट वी हैड सीन अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट्स, द B विच यू हैड सीन अबाउट द योगर्ट प्रोडक्ट, द थर्ड हमने बटर के बारे में पढ़े हैं. बटर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बटर सबको खाना भी बहुत ही अच्छा लगता है. D your today's lecture. Next coming to the assignment. पिछली टाइम का असाइनमेंट चैप्टर नंबर 6 का मैं आज जो है आपको डालने वाली हूँ, और आपको ये PDF करके जब मैं डालूँगी आपको ये नोट्स जो है लिखना है, और ये लेसन जब कंप्लीट होगा तब मैं चैप्टर नंबर 7 की नोट्स डालूँगी. दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. नाउ दिस इज़ योर असाइनमेंट, माय डियर स्टूडेंट. जिसको आता है वो लिख सकता है. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज़ योर फर्स्ट वन. फर्स्ट दैट इज़ योर राइट द following statement using correct of the option and explain the completed statement. That is इसमें कुछ जो है ब्रैकेट्स दिए हैं, आपको इसमें से आंसर आते रहेंगे तो आप लिख सकते हैं. अगर जिसको नहीं आता रहेगा तो मैं आप PDF दूंगी भेज के, आप उसमें से लिख सकते हैं. और आपको नोटबुक कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के साथ साथ आपको याद भी करना है, माय डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन दैट इज़ योर प्रोसेस ऑफ डैश ऑफ मिल्क प्रोटीन्स अकर ड्यू टू लैक्टिक एसिड. सेकेंड यहाँ दिया है हार्मफुल बैक्टीरियाज इन लाइक डैश इन द इंटेस्टाइन आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू प्रोबायोटिक्स. थर्ड वन दैट इज केमिकली विनेगर इज डैश, and D is salt which can be used as supplement of calcium and iron are obtained from dash acid. This was your MCQ. The second is your match the following pair. पहला वाला है xylitol, citric acid, lycopene, lysine. फर्स्ट है इसका पिगमेंट टू इम्पैक्ट स्वीटनेस, माइक्रोबायल रेस्ट्रिक्टर, प्रोटीन बाइंडिंग, एमल्सिफायर टू इम्पैक्ट एसिडिटी. जो बच्चों को इसके आंसर आते रहेंगे वो लिख सकते हैं, जिसको नहीं आते रहेंगे तो मैं इसकी नोट्स आपको भेज दूँगी. यहाँ पर मैं अपना लेसन को कंप्लीट करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.